کرتا ہوں عبد الباری صاحب کا, IEM کا, کہ انہوں نے آج یہ جو انٹریکٹیو پینل ڈسکشن ہے, مجھے بھی پینلسٹ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ وہ لوگ ہیں جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں. میں تو سعودیہ جاتا ہوں پڑھانے کے لیے یا تھوڑا بہت میرا اور دوسروں کے ساتھ کچھ کولیبریشنز میں کام ہے, بٹ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سعودیہ میں کام کیا ہے, کام کر رہے ہیں اور انٹری لے چکے ہیں. تو آج ان سے سیکھنے کے لیے آپ کو ملے گا, مجھے بھی ملے گا, اور ہم سوال بھی کریں گے. ہم Q&A بالکل اینڈ میں کریں گے, اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, وی ڈونٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ, وی لسن ٹو ریپلائی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک اپارچونیٹی مل رہی ہے کہ انٹریکٹیو پینل ڈسکشن IEM نے جو آج آرگنائز کیا ہے, اس میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, آپ جب ان کی کانورسیشن سنیں, اپنے سوال بنائیں. کیونکہ ابھی اس وقت یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر سب سوال نہیں پوچھیں گے, اگر آپ کا وائس اسٹرانگ نہیں ہوگا, تو آپ کا ہاؤ جو ہے نا وہ ویک ہوگا. آپ کبھی بھی اپنے ہاؤ کی طرف نہیں جا پائیں گے کیونکہ آپ کا وائس اسٹرانگ نہیں ہے. تو وائس اسٹرانگ کرنے کے لیے سوال پوچھنے پڑتے ہیں, اور سوال پوچھنے کے لیے آپ کو کانورسیشن کو سیریسنس سے سننا پڑے گا کہ کس نے کیا بات بولی, آپ کی انڈسٹری کیا ہے, میری انڈسٹری ڈفرینٹ ہے, آپ کی ڈفرینٹ ہے. آپ میں سے جتنے لوگ آئے, ابھی ہم سب کے انٹروڈکشن نہیں لے سکتے بیکاز اٹس ناٹ اے ورک شاپ, ایک پینل ڈسکشن ہے, بٹ آپ خود کریکٹ کریں ان کی باتوں سے, ان کے سوالوں سے. شاید میں وہ سوال نہ پوچھ سکوں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کو نوٹ کریں, اور پھر جو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ عمار شاہ ہیں جو کو فاؤنڈر ہیں الف ڈیجیٹل کے. سدرا شکیل کو فاؤنڈر فورٹیفائی. عثمان خان فاؤنڈر اینڈ CEO شیئر دل کلاؤڈ. اور عبد الباری شعیب صاحب جو آرگنائزر بھی ہیں IEM سے, پروجیکٹ مینیجر. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب جو ہیں آپ کے لیے ٹائم نکال کر آئے, جو شاید, اور سدرا تو اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں گے, بہت بہت شکریہ. تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے نالج شیئرنگ کرنی ہے آپ سے, اور سعودی مارکیٹ اپارچونیٹیز پہ یہ پینل ڈسکشن ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے. اور آپ لوگوں سے جیسے میں نے ریکویسٹ کی, آپ سوال اپنے ذہن میں سوچیں, پہلے اس کو سمجھیں, سنیں, اور پھر اس کے حوالے سے سوال پوچھیں. ان لوگوں کے ٹائم کی بھی رسپیکٹ کریں. IEM کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں عبد الباری صاحب کے, انہوں نے اس طرح کا پینل ڈسکشن کیا جس میں سعودی مارکیٹ اپارچونیٹیز کی آج ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. Partners and the perfect location within Hong Kong. The economic impact of LEAP will be $820 million. This is just one of the incredible initiatives that we'll be doing as part of LEAP for 2026. काफ़ी ज़्यादा audience I'm getting to speak with today, and I'm extremely happy to see you all. I'm Abdul Bari from IEM. Basically ہماری کمپنی جو ہے وہ لیپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان میں. So we are their official partners over here. Anything related to participation or even visiting the event, our company looks after it. So I'm here today to network with you all after this panel as well. اگر آپ لوگوں میں کچھ سوال ہوں تو please feel free to ask and we can address those quickly. Thank you. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام محمد عثمان خان ہے, شیئر دل کے نام سے کمپنی ہے, اور میرا بیسک کام, اگر میں سعودی مارکیٹ یا گلف ریجن کی بات کروں تو وہاں پہ میرا کام ٹریننگز کروانا, کیونکہ میں علی بابا کا آفیشیل ٹرینر ہوں پورے ساؤتھ ایشیا کا, اور دنیا کے جو 5 ایکٹیو علی بابا کے ٹرینرز ہیں اس میں ایک میں ہوں پاکستان سے. کیا بات ہے, تالیاں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جب سیشن شروع ہوگا تو میں آپ کو بہت ساری انسائٹس ایسی دوں گا جو کہ آؤٹ آف دی باکس ہوگی, جو میں نے خود انیشیٹ کیا ہے اور اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ملا ہے. تو ہم لوگ مین کام جو سعودی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ مائگریشنس کا ہے. ہم ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, ہم لوگ انفراسٹرکچر کی مائگریشنس کرتے ہیں. اور علی بابا واز دا فرسٹ ریجن جو کہ گلف ریاض کے اندر موجود ہے, اور ایز پر سعودی پالیسی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا. سو وی آر دا فرسٹ انیشیٹو جن نے علی بابا کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا, اور پورے انفراسٹرکچر کو مائگریٹ کر رہے ہیں along with Huawei اینڈ دوسرے جو کلاؤڈ پرووائڈ ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں. جی السلام علیکم. مائی نیم از سدرا شکیل اینڈ آئی ایم دا کو فاؤنڈر آف فورٹیفائی. فورٹیفائی بیسکلی ایک ہم نے سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ اینڈ ٹو اینڈ ریئل اسٹیٹ کے سارے آپریشنس کو آٹومیٹ کرتا ہے, سمپلیفائی کرتا ہے اینڈ کنسالیڈیٹ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم پہ. سو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں
बहुत फ्रेगमेंटेड प्रोसेसेस हैं, बहुत फ्रेगमेंटेड फाइल्स होती हैं. So we are providing one platform for all the operations of business. So we have been working here in Pakistan for the past 5 years now, and पिछले 1.5-2 साल से हम सऊदीया में भी एफर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस लॉन्च हो जाए. So this is what. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमर है, मैं अलोकेबल का को फाउंडर हूँ. हम लोग 2017 से एक्टिव है. प्राइमरीली हम डेवलपमेंट साइड में काम करते हैं, जैसे उस्मान साहब ने बताया वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं. हमसे एक स्टेज पीछे काम करते हैं. हम वी स्पेशलाइज इन B2B स्पेस. B2B में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइज होने करके काम करते हैं. तो हमारा रीजन है, हम प्राइमरीली पाकिस्तान में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, एंड 2023 से सऊदी. थैंक यू अमर. और आई नो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है. सऊदी अरब में स्टार्टअप की जो फंडिंग है 1.3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है. सऊदी का जो विजन है 2030 का वो $1 ट्रिलियन का कमिट किया हुआ उन्होंने. और इस वक्त सारी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं वो हेड ऑफिस वहाँ बना रही हैं. तो लेकिन इसके अलावा एक स्टार्टअप जो है, एक इंसान जो सऊदीया का रुख करे तो उसकी क्या वजूहात होती हैं प्रैक्टिकली, आपने क्या देखा? तो ब्रीफली हमें बताएं कि वाई सऊदी मार्केट, क्यों हमें उधर जाना चाहिए और उसमें ऐसा क्या है और आपको कितना कुछ वहाँ से मिला? थैंक यू. अच्छा देखें, सऊदी मार्केट एक बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है दुबई मार्केट से या यूएस मार्केट से. यूएस मार्केट के अंदर भी सैचुरेशंस हैं. यूएस मार्केट के अंदर इतनी आसानी से आप सैचुरेट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, पहले वीज़े के मसले, चीज़ें मसले. अरबियों की एक ख़ास बात आप याद रखिएगा, अरबी जो है ना 1-to-1 मीटिंग करके ही डील को डन करते हैं. ठीक है ना, आपके साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे, 1 साल 2 साल लगाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद जाके वो डील्स डन होंगे. तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. दूसरी बात ये है कि सऊदी मार्केट खाली भी है, खाली इस सेंस में एज़ कम्पेयर विद दुबई, कि दुबई में जिस तरह से रश लगा हुआ है, चीज़ें लगी हुई हैं, सऊदी में वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम है. और सऊदी के विज़न भी बड़े, जब वो विज़न बड़े हैं ना तो जाहिर सी बात है कि उनके हदफ भी बड़े हैं, उनके टारगेट्स भी बड़े. बिलियंस ऑफ रियाल्स के टारगेट है. वो टारगेट वो खुद पूरे नहीं करेंगे, वो टारगेट हम और आप जाके उनकी मदद से पूरे करेंगे. हम वहाँ पार्टनर्स बनाएंगे. तो पहले साल आप जब जाएँ ना, तो मेरा सजेशन है या तो आप स्मॉल बूथ लेके जाएँ. मैं हमेशा जो है वो स्मॉल बूथ के ऊपर रहा हूँ, मतलब 2 स्क्वायर मीटर या 4 स्क्वायर मीटर के साथ रहा हूँ. वहाँ लोग आके रुकते हैं, बात करते हैं, ठीक है, और आपके साथ बात करने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करते हैं. ठीक है, तो मुझे तकरीबन 3 साल हो गए लीव में. जो मैंने पर्सनली देखा है वो ये देखा है कि जब अरबी आपके साथ रुक के बात कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो आपके साथ कुछ बिजनेस को इनिशिएट करना चाहता है. मैंने 2 साल के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊं तो सिर्फ सऊदीया के नहीं, मैंने बहरीन, ओमान और दुबई के भी कस्टमर्स को वहीं से लॉक किया. मैंने ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 25 कस्टमर वहाँ से बनाए. क्योंकि अट्रैक्शन क्या थी आप? मेन अट्रैक्शन मेरी ये थी कि मैं ये देख रहा था कि अली बाबा वहाँ जा रहा है. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अली बाबा वहाँ जा रहे हैं, मैं अली बाबा को पढ़ा रहा हूँ. अली बाबा को शायद पाकिस्तान में कोई नहीं जानता होगा इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स को जानते हो. मैंने वो नीच 2021 में समझ ली थी. अब जब 2025 के अंदर चाइनीज़ और सऊदी गवर्नमेंट का टाइप हुआ, उसने स्टेक ले लिया और उसको सऊदी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बना दिया, तो प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गए. जब प्रोजेक्ट बढ़ गए तो मुझे इनिशिएट ये हुआ कि यार एक मिनिस्ट्री गई है ना, उसके पीछे पीछे बकिया मिनिस्ट्रीज भी जाए. तो मैंने इस वक्त 4 मिनिस्ट्रीज़ की माइग्रेशन साथ बैठ के उनकी की. तो जाहिर सी बात है मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही. और जाहिर सी बात है जब पब्लिक कंपनीज जाएंगी ना तो प्राइवेट कंपनी पीछे जाएंगी. उनकी एक पॉलिसी है, सामा पॉलिसी कहते हैं, सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी. उनका रूल ये है कि कोई भी डेवलपमेंट हो, AI हो, ML हो, सब उनके रीजन के अंदर होना चाहिए. तो यहीं से आप एक क्लिक कर लें अगर आप बिजनेस माइंडसेट के हैं कि आपने जो भी करना है उनकी एंटिटी के अंदर आके करना है. दूसरी बात है आपको प्रोजेक्ट उस वक्त मिलेगा जब आप वहाँ पे फिजिकल होंगे, उनके साथ बात करेंगे या फिर वहाँ पे कंपनी बनाएंगे, CR आपकी होगी. अदरवाइज आपको बिजनेस नहीं देंगे, आप 10 साल तक जाते रहे एज अ विजिटर, आपको नहीं मिलेगा. तो ये एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक है कि आपने वहाँ पे स्टार्टअप के साथ रहना है, कोई बूथ लेना है, एग्जिबिट करना है. हम मेरी ज़बान में उसको बोले तो मतलब आपने किसी डेलीगेट के साथ नहीं जाना है. आपने लीग में, जैसे मैं इनके साथ जा रहा हूँ 3 साल से, तो मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ आज़ाद उम्मीदवार हूँ. ठीक है ना, आज़ाद उम्मीदवार मतलब कि मैंने अपनी पहचान बनाई. अच्छा, दूसरी एक और काम मैं करता हूँ वहाँ पे कि मेरे स्टूडेंट इस वक्त 22 ममालिक में, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता हूँ, स्पेशली सऊदीया में, मैं वहाँ जाके लंच ऑर्गेनाइज करता हूँ अपने खर्चे के ऊपर. मेरे 3-4 हज़ार रियाल लग जाते हैं, लेकिन वो 4,000 रियाल से मैंने 4 लाख रियाल तक निकाले. क्यों? क्योंकि मैंने 40 लोगों को बुलाया ना, उसका कोई अरबी दोस्त होगा वो लेकर आएगा, आपका कोई दोस्त होगा वहाँ काम करो, कोई अरबी आ जाएगा. तो मुलाकात तो मैंने करनी ना. वहाँ खाने की टेबल पे जो मुलाकात होगी ना वो आपकी वहाँ एग्जीबिशन में नहीं होगी. एग्जीबिशन में रश ज़्यादा होगा, तो एग्जीबिशन से 1-2 दिन पहले आप जाएँ,
वहाँ रुकें, वहाँ लोगों को ऑर्गेनाइज करें, खाना खाएं, उनके साथ बात करें, उनके मसलों को समझें और फिर उनके साथ बात करें। और फिर इवेंट के बाद भी हफ्ते 2 हफ्ते रुके, ये बहुत ज़रूरी है। लोग इवेंट के बाद आ जाते हैं, इवेंट के बाद आपने रुकना है, बात करनी, क्योंकि इवेंट में किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने जो भी बिजनेस लॉ किया है ना, वो इवेंट के बाद 1-1 महीने 15-15 दिन रुक के मैंने वहाँ बिजनेस लॉ किया है। ठीक है। अच्छा सिद्रा, ये बताएं कि क्योंकि सऊदी जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट तो नहीं है, कि वो तो लोकल फॉरेन स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपका रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें सऊदी की मार्केट ही आपने क्यों सेलेक्ट की कि आपने इसमें जाना है अपनी इस प्रोडक्ट को लेके सर्विस? अच्छा, हम लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे तो ज़ाहिर है यहाँ के अपने इश्यूज हैं रियल एस्टेट को लेके, रिसीवेबल्स में हमारे मसले होते थे। तो वी रियलाइज्ड कि PKR में हमारी वो ग्रोथ नहीं होगी जो हम चाहते हैं। वी हैव टू गो टू एनी फॉरेन करेंसी कि वहाँ से इन्फ्लोज हो। फिर हमने मार्केट रिसर्च करना शुरू किया। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि UAE के मार्केट जो है, ऑल्दो वहाँ पे बहुत प्रॉपर प्रोसेसेस हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, बहुत तरीके से चीज़ें होती हैं, बट वो हमारे जैसे सॉफ्टवेयर के हिसाब से थोड़ी सैचुरेटेड मार्केट है। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ERTs हैं जिस तरह के चल रहे हैं, रियल एस्टेट CRMs हैं जो चल रहे हैं, एंड बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत है वहाँ पे। फिर हमने देखा सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया जो है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन $130 बिलियन की वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइन अप हुए हैं। इसमें न्योम हो गया, हमारा रेड सी प्रोजेक्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो चलो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बट जो नीचे लेवल के हैं, जो रियल एस्टेट एजेंसीज हो गई, तो तकरीबन 50,000 एजेंसीज पिछले 18 महीने में रजिस्टर हुई हैं, एंड सारी की सारी व्हाट्सएप पे चल रही है। मतलब कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो सब व्हाट्सएप पे हो रही है। तो इतना ज़्यादा जो है गैप है वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लेवल पे। और ये आपने मैनुअली खुद कुछ किया या कोई रिसर्च करवाई? हम वहाँ पे ग्राउंड पे रहे, लोगों से हमने बातें की हैं। डॉक्टर सुहेल मुनीर से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई वहाँ पे, उन्होंने हमें ये सारी इंसाइट्स दी, एंड लीप में हम गए, वहाँ पे इंसाइट्स मिली। फिर 24 फिनटेक, उन सब चीज़ों में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ऑन ग्राउंड हमारी प्रेजेंस रही, लोगों से हमने बात किया, पता चला अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमें सारी इंसाइट्स मिली। तो पॉइंट इज़ कि मैं बिल्कुल उस्मान की बात से एग्री करती हूँ। वहाँ पे ये चीज़ है कि रिलेशनशिप पे बहुत फोकस है। दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट प्रेजेंस जरूरी है, एंड दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू कि आपकी चीज़ अच्छी है। देखेंगे आप हैं कैसे, आप बात कैसे करते हैं उनके साथ, इंपॉर्टेंस किस हिसाब से देते हैं, पेशेंस लेवल आपका क्या है, रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए मैटर करती हैं। अच्छा, पिच डेक जो है ना, से मतलब ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे दुबई के अंदर या और भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर आपकी पिच डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सऊदी के अंदर लोकल पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो साइडलाइन इवेंट्स होते हैं, डिनर्स हो रहे हैं, उसमें आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद भी इतने साल, जब अभी रियाद में भी मैंने पढ़ाया है लिंक्डइन पे, तो मैंने कोशिश की कि इवेंट्स, नेटवर्किंग, डिनर्स मैंने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा अटेंड किए। अमर, आप बताएं कि आपकी क्या फील्ड है और आपने क्या पहले रियलाइज़ किया कि जी आपको सऊदीया ही जाना चाहिए, और आपने किस तरह से इसकी रिसर्च की कि आपको फिजिबिलिटी कैसे बनाई आपने? अच्छा, हमारा काफ़ी डिफरेंट है इन लोगों से, गिवन सबने बहुत रिसर्च की। हम तो क्वाइट ऑनेस्टली सर्विस बिजनेस में बड़ी मेजर चीज़ होती है, आप देखते हो कहाँ पे मार्केट में स्पेस है। सऊदी में ठीक है, सबने बहुत वैल्यूज़ की, 30 years का वो सब अच्छी वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक सर्विस बिजनेस के लिए ना ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आपके लिए क्या मैटर करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आप जो हो वो सर्विस कर सको, आपकी सर्विस में सैचुरेशन ना हो, और आप अगेन प्रोवाइड कर सको। सऊदी की जो अगेन हमें कह सकते हैं वो क्या है, जनरल ट्रेडिशनल 3-4 ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जनरेशनल बिजनेसेस हैं, मतलब लोग ऐसे हैं जिनके अगेन पिछले 100-150 साल से बिजनेस चल रहे हैं, एंड क्या 1970, 1980s में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो सऊदी की मार्केट ना इस हिसाब से बहुत अच्छी है। आप जाएँ, आप एक रैंडम किसी बॉटल फैक्ट्री से मिलेंगे, आप किसी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री से मिलेंगे ना, उनके पास भी देयर इज नथिंग सेटअप। तो लेट्स से अगर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्लाउड का, या फिर बहुत छोटी सी उनको लिटरली मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हैं, इससे लेकर टॉप तक हर चीज़ के लिए अवेलेबिलिटी बहुत है।
اینڈ ان کی اوپننس بہت ہے. سیکنڈ چیز یہ بگیسٹ چیز ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دیٹ مینس ڈیجیٹل کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہت بیسک لیول پہ ہے جو انیشیٹو سعودی میں اس مطلب ٹھیک ہے گورنمنٹ تو بہت کچھ کر رہی ہے بٹ آپ جا کے ایکچولی جیسے انہوں نے بولا سیم وہی ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے ڈنر کرنا پڑتا ہے. آپ کو ڈنر کرتے سمجھ آئے گا پچ ٹیکس پروپوزل کو پڑھ کے سمجھ ہی نہیں پاتے. تو کہتے ہیں اس کا میں کہتا ہوں جنرلی آل دی ریلی وانٹ از کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں کیسے ڈیجیٹلائز کروں کیونکہ گورنمنٹ نے وہاں پر ہر چیز کا رول نکال دیا ہے. جی ایس ٹی آٹومیٹک ہونا چاہیے, آپ کی انوائسز میں وہ یہ سسٹم ہونا چاہیے, یہ سسٹم ہونا چاہیے, فاتورہ کا سسٹم انٹیگریٹ کرنا. تو لوگ تو سارے کنفیوز ہی ہو گئے کہ اتنا آئی ٹی آ گیا اچانک سے. تو آپ یہاں پر بہت بڑی اسپیس ہے. گورنمنٹ آئی ٹی پوش کری جا رہی ہے, لوگوں کو آئی ٹی سمجھ نہیں ہے. ہم مڈل مین جاتے ہیں, ہم وہ گلو بنا دیتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سروس کو بہت سے جوڑ دیں گے. دیٹ از اٹ. تو جو بگیسٹ چیز ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ آف یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے. آپ کیونکہ لوگ کچھ بھی کریں گے چاہے خود سے ڈیجیٹلائز کرنا چاہے نہ چاہے گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو ضرور کور کریں گے. اینڈ یہ آئی تھنک بگیسٹ اسپیس ہے. تو اس سے میرے خیال سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ پریزنس بہت ضروری ہے. مطلب آپ سب نے بھی میرے خیال سے جا کے یہ ساری فیزیبلٹی بنائی اور پریزنس شو کی, لوگوں سے ملے. مطلب یہ والی مارکیٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے کوئی ڈیٹا آپ نے لے لیا, کوئی آپ کے پاس کسی کا ای میل ایڈریس آ گیا اور آپ نے اس کو لنکڈن پہ بھی ایون بات کرنی شروع کر دی تو سعودیہ کی مارکیٹ میں آپ ٹیپ کر سکتے ہو. اب تو باری یہ بتائیں کہ کون سے اسٹارٹ اپس ہیں مطلب جن کو جانا چاہیے, کون سی انڈسٹریز ہیں. میں نے ویژن 2030 بھی پڑھا ہے کہ اس میں فن ٹیک بھی آ رہا ہے. تو اور کون سے انڈسٹریز ایسے ہیں جس میں جو ہے مطلب اسٹارٹ اپس کو پریفر کرتے ہیں. لیپ کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے اور کن لوگوں کو جانا چاہیے یہاں پہ اگر وہ ایز اے اسٹارٹ اپ مطلب وہ اوبیسلی پریزنس تو شو کریں گے اپنی بٹ ایک ایونٹ کے اندر پہلے پریزنس اگر اپنی شو کریں تو کون سے اسٹارٹ اپس جاتے ہیں, کیا کیٹیگریز ہیں وہاں پہ؟ اچھا اس کا تو میرے ساتھ سینیریو کچھ ایسا ہے کہ لیپ میں we only want those startups who are more innovative. Now the reason why I'm saying this is کیونکہ لیپ ایک نارمل ایگزیبیشن کی طرح نہیں ہے. تو اس میں سینیریو ایسا ہوتا ہے کہ we ask the startups to fill out a certain application اور اس میں ہماری جو ریویو ٹیم ہے they are those guys go through the application and then select the startups. So what you can expect from the startup area over there is کہ آپ کو جو لوگ انوویٹیو ہیں ٹھیک ہے جن کے اسٹارٹ اپس انوویٹیو ہیں ان سے آپ لوگ نیٹ ورک کر سکتے ہیں. فلٹرڈ آؤٹ آڈینس ہوگی, انویسٹر سے آپ لوگ ادھر مل سکتے ہیں. اٹس کوائٹ گڈ اسپیس فار اسٹارٹ اپس اینڈ اٹس اے فلٹرڈ ٹاؤن. ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ اسٹارٹ اپس کون سے جانے چاہیے وہاں پر. اب کیونکہ سعودی ویژن 2030 میں اٹس مور فوکسڈ آن ڈیجیٹل سعودی, تو فن ٹیک از اے پارٹ آف اٹ جس میں آئی تھنک منی 2020 ہمارے ایونٹ ہوتا ہے جس میں صدر از اے پارٹ آف اٹ ایز ویل. تو فن ٹیک از ون, سائبر سیکیورٹی از ون کیونکہ ونس اگین ونس یو گو ڈیجیٹل یو ریکوائر سائبر سیکیورٹی. تو سائبر سیکیورٹی کا ایریا ہے. اینڈ دین ونس اگین دیر از اے ورڈ بائی دی نیم آف اے آئی. تو ہر کوئی اے آئی میں کام کر رہا ہے. سو اے آئی از سم تھنگ دیٹ دوز گائز نیڈ ایز ویل. سو یہ لیپ کا بیسک اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جب اس طرح کی پارٹیسپیشن میں جاتے ہیں اوبیسلی عبد الباری تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, پورا سپورٹ بھی کرتے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک. بٹ آپ لوگ ایپ کا بھی استعمال کریں. جو ایپ کا استعمال ہے, ایپ کو سمجھنا, اس کے ہیڈس کو سمجھنا, وہاں نیٹ ورکنگ کرنا, میٹنگس پہلے سے سیٹ کرنا آپ کی انویسٹر سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب وہ لیپ میں جو ہے نا جب آپ انٹر ہوں گے تو عبد الباری کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ 4 انویسٹرس کو آپ کو ملوائیں گے. تو مطلب آپ نے خود بھی جو ہے وہاں سے ایپ کے تھرو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, اس کو سمجھنا ہے کتنے اسپیکرز ہیں, کون سے اسپیکرز ہیں, کیا آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, کن انویسٹرس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کن اسپیکرس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کن سے آپ نیٹ ورکنگ کے لیے آپ میٹنگ شیڈیول کر رہے ہیں. یہ سارا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی ایونٹ میں ایز اے ایگزیبیٹر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے اسٹارٹ اپ کی انوویشن کی بات کی تو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک چیز کوئی اگر آپ لوگ ایک ایک کر کے بتائیں کہ جی پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس میں, یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے اسٹارٹ اپ چل رہے ہوں گے, تو پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کون سا ایسا کی ڈفرینس ہے کیا ان کو یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے جانا چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے پاکستان میں. اب وہ پروڈکٹ کے لحاظ سے اسٹرگل کر رہا ہے, ریونیو کے لحاظ سے اسٹرگل کر رہا ہے, یا ایکسپینشن کے لحاظ سے اسٹرگل کر رہا ہے, گروتھ کے لحاظ سے. تو میں اسٹارٹنگ فرام عثمان کہ کوئی ایسی چیز جو ان کو
डिसाइड करनी चाहिए कि नहीं यार अगर इन चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है तो फिर तो उसको सऊदीया मार्केट पे जाना चाहिए और एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते ही कंपनी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। याद रखिएगा सऊदी मार्केट के अंदर जो फ्री जोन में भी कंपनी है ना, वो 65,000 रियाल से 70,000 रियाल पर है। क्या आपका बजट अलाउ करता है कि कंपनी बना के क्या कर लोगे? मतलब प्रेजेंस तो है नहीं मार्केट में आपकी। मेरी आज तक कंपनी नहीं है सऊदी, ठीक है ना। मैंने जो ये काम किया है वो काम ये किया, मैंने पार्टनर्स बनाए। अच्छा, पार्टनर्स जिनको भी आप बनाएंगे ज़्यादातर वो सऊदी शहजादों की या तो नस्लें होंगी, नीचे कोई प्रिंस होगा, कुछ होगा, उसकी कंपनी होगी, और वहाँ पर रेफरेंस मैटर करता है। याद रखिएगा, आपकी स्किल मैटर नहीं करती। मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स विन किए हैं जहाँ पे किसी एक अरबी क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो रॉयल फैमिली का है और वो प्रोजेक्ट विन कर गया, ठीक है भाई। तो मार्केट की डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दुबई की मार्केट नहीं है। दूसरी बात ये, वहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो फिल्टर होते हैं, वो पूरी आवाम या पूरा जनता नहीं होता कि बस उठ के आ रहा है और बस एग्जिबिट विजिट कर रहा है और जा रहा नहीं। वहाँ जो लोग आ रहे हैं ना वो सीरियस बायर हैं आपकी प्रोडक्ट के, आपकी सर्विस के, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। तो आप कंपनी ना बनाएं, वहाँ पे आप पार्टनरशिप्स करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे इस वक्त 6 पार्टनर्स हैं सऊदी में और वही ला के देते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, सऊदी टेक्नोलॉजी में मतलब एज अ स्टूडेंट उनको अगर मैं बोलूँ कि जो बच्चे वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा आईटी में एक्सेल नहीं कर रहे हैं, करना स्टार्ट किया है बट इट टेक्स टाइम। तो वो हमसे क्यों काम करा रहे हैं? उनके पास नहीं है ना लोग, तभी तो काम करा रहे हैं। तो उनके पास बेचने की स्किल है, वो आगे प्रोजेक्ट ला सकते हैं, वो टेंडर उठा सकते हैं, वो लीगल लोकल वहाँ पर हैं। आप उनको अपनी सर्विसेज अब सेल क्रॉस सेल करेंगे और उनके पार्टनरशिप के थ्रू आप लेके जाएंगे। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट विन किया था वहाँ पे, वो 100% यूनिक था। उनको अरबी में डेवऑप्स सपोर्ट चाहिए। मैंने कराची के दारुल उलूम और जामिया रशीद से लड़के उठाए, आलिम, उनको अरबी आती थी, उनको सिखाया, उनके थ्रू 6 महीने तक मैंने डेवऑप्स की पूरी सपोर्ट दी है अरबी के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और प्रेजेंस का मैं आखिरी बस बात करके ख़त्म करूँगा कि आपने सिर्फ पार्टनरशिप करनी है, आपने कंपनी इनिशियल वेट अंदर नहीं। पार्टनरशिप कैसे करें? यार पार्टनरशिप बहुत सिंपल बात है। मेरे बूथ पे एक बंदा आया, ठीक है ना। जब बंदा मेरे बूथ पर आया तो मैं उससे बात करूंगा कि यार आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो। तो या तो उसको अपना कोई मसला होगा लेकर आएगा, या वो कहेगा यार मेरी कंपनी है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके पास पैसा उनके पास बहुत है, वो कहेगा पैसा है मुझे बताओ लगाऊँ काम, वो आपसे सवाल करे। तो मैंने 3 अरबियों की कंपनी इसी तरह उनकी खुलवाई, उनके बैक एंड पर मैं बैठा हूँ, मैं खुद सऊदीया जाता हूँ, उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। 10 मीटिंग मैंने अटेंड किए तो उसमें से 1 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट मुझे मिले, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट और पेशेंस रहना पड़ता है। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, उसके ऊपर मेरे 8 से 9,000 डॉलर लगे सिर्फ आने जाने में, खाना खिलाने में उसको, ठीक है। तब जाके उसने मुझे अपनी वेंडर लिस्ट में शामिल किया और अभी उसने मुझे पहला टेंडर दिया, ठीक है। तो 2-2.5 साल के बाद तो आपके पास जब बंदा आएगा ना तो आप उसके मसलों को समझें। 80-20 रूल में खाली सबको बताओ, 80% सुनना है, 20% सुनना है। तो आप उसके मसलों को समझें और फिर आइडेंटिफाई करें यार उसको मैं बेचूं या उसको पार्टनर बनाऊं। मेजोरिटी लोग पार्टनरशिप के लिए आपके पास आएंगे, क्यों? वो आपके अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं कि आप उनके लिए बेच सकते हो, लेकिन आपको पता है आप कंपनी नहीं बना सकते, उनको पता है वो बंदा नहीं हायर कर सकते, कितने बंदे हायर करेंगे। तो आप यहाँ कोलैबोरेट करो। मैंने इसी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पार्टनरशिप्स बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप मॉडल पे मैं आगे चला अली बाबा के साथ भी, बाकी लोगों के साथ। अच्छा, मैं इसी के बरअक्स थोड़ी सी बात करूँगी, थोड़ी ऑपोजिट है। उस्मान, आई थिंक सर्विसेज इंडस्ट्री में है तो पार्टनरशिप सारी चीज़ जो है एप्लीकेबल होती है 100%। बट इफ़ यू आर अ स्टार्टअप जो कि आगे वेंचर कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो उनके लिए VCs के लिए JV होना इज़ अ नो। वी हैड टू मतलब वी हैड अ डील, वी गॉट अ टर्म शीट फ्रॉम एन इन्वेस्टर, हमें मिली, सब कुछ था, बस में एक टर्म ये थी कि आपको अपनी JV पार्टनरशिप होनी पड़ेगी। एंड क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी साइन किया हुआ था, सब किया हुआ था, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वी कुड डू। तो हमने वो VC पैसे हमें रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि अगेन इफ़ यू आर अ प्रोडक्ट जिसको आगे स्केल करना है, हाइपर स्केल करना है एंड VC फंडिंग उठानी है, आगे लेके चलना है, सो JV इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट वे टू गो अबाउट। इसमें फिर यही है कि आपको कंपनी अपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैपिटल आपको बर्न करना पड़ेगा एंड सऊदी लोगों को आपको जो टीम का पार्ट बनाना पड़ेगा। फंडिंग के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इनोवेटिव स्टार्टअप है कोई, तो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो भी पर्क्स होते हैं जो कि लोकल्स को मिलते हैं कुछ, तो हमने लोकल्स को अगर आपने ऑनबोर्ड किया हुआ है तो आपको पर्क्स मिलेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर ये भी एक चीज़ होती है। सो क्योंकि हमने 1 साल पूरा इसी हम रहे हैं, JV के साथ हमने एक इन्वेस्टर को मना कर दिया, बट इवेंचुअली द JV डिड नॉट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। बीच में हम लोग बिल्कुल हैंग हो गए कि अब क्या करें।
اب ہم جا رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں VC ہی اٹھانا ہے, تو اب ہم کمپنی فارم کرنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. پائپ لائن میں ہمارے پاس آلریڈی کسٹمرس ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ کی کمپنی بن گئی ہم آپ کو VC دیں گے. تو ایک فرام VC پرسپیکٹو چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. ہم لوگ خود تو اسٹارٹ اپ نہیں, لیکن بہت سارے اسٹارٹ اپس کا کام کرتے ہیں, اسپیشلی ان سعودی, بیکاز یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ فنڈنگ ایزی ایکسیس ہے. تو آپ نے جو پرابلم بتایا نا, اگر آپ کا پرابلم فائنینشیل ہے, اگر آپ کو فنڈنگ ریز کرنی ہے تو سعودی از اے گریٹ مارکیٹ. اینڈ جیسے کہ آپ کو کمپنی یا پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے, تھرڈ راؤنڈ یہ جیسے NIC ہے, وہاں پہ گراج ہے, وہاں پہ دوسرے بہت سارے وہ ہیں, ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بلا لیں گے. مسک ہے, بہت لاٹس آف ڈفرنٹ پروگرامس ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ پاکستان میں کسی سستی مارکیٹ میں جنرلی آپ پاکستان میں ٹیسٹ کریں, وہ آپ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ضرور ڈھونڈیں, یہ دیکھ لیں کہ یہ پروڈکٹ یوزفل بھی ہے کہ نہیں. سیم لوگوں نے کیا, لانچ کوائٹ اے فیو ایئرز ان پاکستان, دین موو ہوئے. آپ سعودی جا کے پروڈکٹ سے ایکسپیریمنٹ کریں گے, وہ بہت کاسٹلی پڑے گا آپ کو. کیونکہ سعودی میں اگر یہ تو آپ اگر انویسٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بیسکلی ایک بندے کو تو موو کرنا پڑے گا. اگر آپ سستے رستے میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ NIC جیسے کسی جگہ میں گراج ہے سب جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ کو موو کرنا پڑے گا. اور شاید آپ کی پروڈکٹ یہاں اسٹرگل کر رہی ہو, لیکن وہاں پہ اس کی نیڈ ڈیمانڈ, لیکن پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان میں اتنی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے تو آپ کا پروڈکٹ کی اس طرح سے پک اپ نہیں ہو رہا, بٹ دیر نیڈس ٹو بی, مطلب نیڈ ہونی چاہیے وہاں پہ, صرف تبھی آپ جائیں. اینڈ فنڈنگ بھی وہاں پہ بہت اویلیبل ہے, بٹ اگر آپ اس پروڈکٹ مارکیٹ فٹ نہیں, آپ کو لگ رہا ہے آپ کو فنڈنگ مل جائے گی, آپ کنٹینیو کر لیں گے, وہ ہو نہیں پائے گا. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ جو ہے اس کی فنڈنگ جو مطلب اس کا اپروکسیمیٹ بجٹ ایک ادارے کو سوچنا چاہیے, پروسیس کیا ہے کہ اگر کوئی ادارہ انوویشن کی طرف جا رہا ہے, اس کی پروڈکٹ بہت انوویٹیو ہے, اس کی سروس بہت انوویٹیو ہے, تو کیا پروسیجر ہے اپلائی کرنے کا, کب اپلائی کرتے ہیں, کیا فنڈنگ ملتی ہے, پاکستان کا پویلین کیا ہیلپ کرتا ہے, اس پہ تھوڑا سا بتائیں. کہ اگر چلیں یہ ساری چیزیں سمجھ لیں کہ یار اب ڈیسائڈ کر لیا کہ ہمیں گروتھ لینی ہے, ہمیں اسکیل کرنا ہے سعودیہ جا کے, ہماری پروڈکٹ فٹ بھی صحیح ہے, تو اب جو ہے وہ کیسے ہمیں لیڈ کیسے ہیلپ کرے گا, کیا پروسیجر ہے؟ اچھا, کمنگ ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ, پہلے میں آپ لوگوں کو اپلیکیشن پروسیس دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. آفٹر دس ایونٹ آئی ول آسک مائی ٹیم ٹو سینڈ یو آل دا اپلیکیشن لنک, ٹھیک ہے, ٹو اپلائی ان دا اسٹارٹ اپ ایریا. Once you have applied over there, I'll consult with my team in Riyadh, اور مجھے جتنے اسٹارٹ اپس کا اپروول ملتا جائے گا I'll let you guys know by email, ٹھیک ہے. Once you guys have been approved, اس کے میں آپ کو فائنینشیلس بتا دیتا ہوں. ایک اسٹارٹ اپ پورٹ آپ کو کاسٹ کرتا ہے $2,703. دس از انکلوزیو آف 15% بینڈ جو اب مینڈیٹری ہو گیا سعودیہ میں. تو دس از دا ٹوٹل کاسٹ فار. اس میں آپ کو ملے گا کیا کیا, آپ کو ایک بوتھ مل جائے گا چھوٹا سا 2.81 اسکوائر میٹر کا, اس میں برانڈنگ آپ لوگوں کی شامل ہوگی, پلس آپ لوگ راکٹ فیول اسٹارٹ اپ کمپٹیشن کا پارٹ ہی بن سکتے ہیں. ناؤ واٹ از راکٹ فیول؟ راکٹ فیول ورلڈ وائڈ اسٹارٹ اپس کے بیچ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ونر کو ایک سرٹن پرائز منی ملتی ہے. ناؤ لاسٹ ایڈیشن میں ایک پاکستانی کمپنی نے ہی اس کو ون کیا تھا بائی دی نیم آف مس الینا ندیم, اگر آپ لوگ جانتے ہیں, شی ہیز بین ون آف دا شارکس ان شارک ٹینک پاکستان, تو ان کی کمپنی نے ون کیا تھا. سو اٹس اے گڈ پرائز منی. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سعودیہ میں اب وہ لوگ آپریٹ بھی کر رہے ہیں. سو لیڈ از اے پلیٹ فارم فار یو گائز ٹو ایکسپلور اینڈ دین انٹر دا سعودی مارکیٹ, ایکٹس ایز اے گیٹ. تو یہ اس کے فائنینشیلس میں نے بتا دیا راکٹ فیول. اور دوسرا جو طفیل صاحب ابھی انہوں نے امپورٹنس بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ آپ لوگ موبائل اپلیکیشن کا یوز کریں, تو موبائل اپلیکیشن کا ایکسیس ملے گا. اس میں ایک سرٹن ٹیب ہوتا ہے بائی دی نیم آف انویسٹرس, تو آپ کے سیکٹر سے ریلیٹڈ ہی انویسٹرز وہاں پہ شو کریں گے, تو آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں لیڈ کے دوران. دے ول کم, دے ول وزٹ, اور انشاءاللہ ونس اگین ونس کنیکٹ ود دیم یو ول گیٹ مور بزنس اپورچونیٹیز ٹو سیکیور. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں کیونکہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو ROI بہت دیکھتے ہیں کہ یار ہم ROI کیلکولیٹ کیسے کریں. مطلب اگر ہم نے اپلائی کر دیا, سلیکٹ ہو گئے, ہم لیگ میں جا رہے ہیں, پھر ہم نے پریزنس, پروڈکٹ آفرنگ, یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کرنی. تو اسٹارٹنگ ود عثمان کہ ROI جو ہے ان سب چیزوں کا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ یہ اسپینڈ کرتے ہیں, اوبیسلی وہ ایکسپینس تو نہیں ہوتا, آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نیٹ ورکنگ پہ, یا آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے کاروبار پہ, بٹ اس کا ROI ایک ادارہ, ایک اسٹارٹ اپ کیسے نکالے پاکستان سے اگر وہ سعودیہ جا رہا ہے؟ تھینک یو. اچھا دیکھیں, ROI کی جہاں تک بات ہے نا, اس کو آپ کچھ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. آپ کس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر اتنا پیسہ فنڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی جیب اجازت دے سکتے, جتنا ہم سہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ میں نے آگے بتایا پیشنس.
मैं जेटेक्स की बात करूँ, लीव को 2 मिनट रोक के, जेटेक्स में मैं 4 साल से जा रहा था, 2020 में गया, 21 में गया, 22 में गया, 3 साल तक गया। चौथे साल मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसने 2 महीने के अंदर मेरे 4 साल के पूरे पैसे बाहर निकाले। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। मैं नहीं चाहता चौथे साल शायद मुझे वो नहीं मिलता ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लीड के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ROI कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता, बट या तो आप गिव अप कर दो या अगले साल फिर जाओ। मुझे पहले साल भी नहीं मिला, दूसरे साल भी नहीं मिला, तीसरे साल मुझे कस्टमर्स मिलना शुरू हुए और आज वो मेरे साथ हैं, ठीक है ना। मैंने उनके साथ कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट किया, लेट से 500 रियाल का, 1000 रियाल, तो वो एक दरवाज़ा है उनके साथ इंटर होने का। उनका ट्रस्ट मेरे साथ बढ़ गया और उन्होंने आगे करने लगा, क्योंकि अरबी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ट्रस्ट के मामले। वो आपका NDA भी साइन कराएंगे, 10 किस्म के डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे, उनको डाउट ना हो कि यार आप कहीं चले तो नहीं जाओगे, हमारी प्रोडक्ट आगे किसी और को तो नहीं दिखा दोगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ROI निकल आता है एट द एंड, बट भाग दौड़ ज़्यादा है सऊदीया में दुबई के मुकाबले में। आपको अर्जियों के पास जाना होगा। अब मैं जहाँ पे एग्जीबिशन होती है वो मलहम का इलाका है, रियाद से 1.5 घंटा लगता है। पहले तो ट्रैफिक जाम होता था, अब तो उन्होंने 12 से 9 का टाइम कर दिया। मुझे एक कस्टमर मिला कसीम का, वो मलहम से भी 2 घंटे आगे, तो मैं रेगिस्तान में गाड़ी लेके जा रहा हूँ थोड़ा मिलने के लिए, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर रियाद जा रहा हूँ। तो अच्छी खासी जिसे बोलते हैं ना कि ठीक ठाक आपकी जो है ना हेडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपको ऐसे ही लग जाता है, शाम तक हालत ऐसी हो जाती है कि अगले दिन पता नहीं होता कि जा पाएंगे नहीं, टांगे उठ के हालत हुए ना। क्योंकि रियाद जो है ना बहुत बड़ा इलाका है, उसमें 2-3 दुबई आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलना बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ एग्जीबिशन है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे वो कितना बड़ा एरिया है कि हॉल 1 से 2 में जाते हुए शायद सुबह से शाम हो जाए, इतना बड़ा एरिया। क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप अलग किए हुए, गवर्नमेंट अलग किए हुए, बड़ी कंपनीज अलग हैं, पाशा वाले अलग बैठे हुए, आज़ाद उम्मीदवार अलग बैठे हुए, तो थोड़ा डिफरेंट वो चीज़ें होती है, ठीक है। ROI आपने कैसे निकाला है, कैसे निकाला? मैं उस्मान की बात से बिल्कुल 100% एग्री करूँगी यहाँ पे। उस्मान को तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम किया है सऊदी मार्केट में, बहरीन, दुबई एक्सेट्रा। हमें अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, तो ROI तो ऐसी चीज़ है जो अभी हमने कोई खास कैलकुलेशन नहीं की है, क्योंकि वही बात है अभी तो सिर्फ बर्न है, अभी तो सिर्फ जलाने हैं पैसे वहाँ पे ना, और एक्वायर करना है, बातें करनी है, मार्केट इनसाइट्स देखनी है, प्रोडक्ट को मैच्योर करना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट सऊदी के हिसाब से देखनी है, ये सब चीज़ें होंगी। पहला कस्टमर जब आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्ट कितना अच्छा ROI आया है। तो जी अम्मा, अच्छा, हमारा एक्सपीरियंस सिमिलर टू उस्मान ही है। ROI थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन यही है कि आपकी पहली डील ही क्योंकि सऊदी में वैल्यू इतनी हो रही थी, प्रॉब्ली आपका सारा ROI कवर कर देगा। हम 2023 में गए थे, हमें इत्तेफाक़न 2023 में एक बहुत छोटी सी डील मिल गई थी जो एटलीस्ट लीड की $2,000 कॉस्ट कवर कर दी थी उसमें, लेकिन $2,000 कॉस्ट तो एक चीज़ होती है। आगे अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो हमें दिन बिकॉज होता ही है कि जैसे सब एक्सप्लेन किया ना, नोबडी गिव्स यू बिजनेस वहाँ पे। आप सोचो कि स्टॉल लगाओगे आके आप अपनी थोड़ी सी दे टॉक टू यू, दे टेक योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, दैट्स इट। आप वापस आ जाते हो, देन आके आपको यही फीलिंग हमेशा आती है $3-4,000 डूब गए, लेकिन देन इट्स रियली स्लो। आपको प्रॉब्ली रैंडम एंड यू ट्राई टू फॉलो अप विद देम, सऊदी फॉलो अप में भी काफ़ी खराब है, स्पेशली ईद की इससे पहले टाइम होती थी रमज़ान, टीम से वापस आते थे रमज़ान हो जाता था। रमज़ान में सऊदीज़ गो टू स्लीप, दे डोंट केयर, दे डोंट टॉक टू यू, दे डोंट रिप्लाई, दे डोंट डू एनीथिंग। बट रैंडम हमें एक ने पिक्चर भेजी थी, हम कार्ड्स देते थे उनको जिसमें हमारी सर्विस लिखी होती थी, जैसे मोड़ा हुआ कार्ड की मुझे पिक्चर भेजी थी 1.5 साल बाद। कहता यार मैं आपको उस दिन से ढूंढ रहा हूँ, नाम याद नहीं था, आज गाड़ी साफ कर रहा था तो ये निकल आया। तो मुझे व्हाट्सएप पिक्चर भेजी, कहता यहाँ से मुझे आपका नंबर मिला। कहता यार वो आपने वहाँ पे, मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा अपना काम देखा, क्या आपने वहाँ पर एक कस्टमर की ऐप दिखाई थी आपने बनाई थी, वही बनाते हैं, एंड दैट डील कवर्ड मोस्ट ऑफ द ROI। तो ROI आप पहले साल में शायद नहीं है, आप दूसरे साल जाओ कवर हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही है, बट हो जाएगा। स्पेशली सर्विस बिजनेस में प्रोडक्ट वालों को तो बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, सर्विस बिजनेस में इजी, आप एक बिल्कुल सिंपल सी बिजनेस ऑफर करो, वो आपसे ले लेंगे। प्राइसिंग सेंसिटिव नहीं है वो लोग, बट दे नीड टू ट्रस्ट यू। 2-3 दफ़ा खाना खाने चले जाओ उनके साथ, उन्होंने तो खर्चा किया, हमें तो सऊदियों ने खाना खिला दिया था वैसे, हमारा खर्चा लगा नहीं हुआ था। तो आप जाए उनसे मिलिए, खाना वाना खाएं उनके साथ, आपको पसंद करेंगे, काम भी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब आप हम सबके लिए ज़रूर वहाँ पे एक लंच या डिनर अरेंज करें, तो सब जो है ना वो, हाँ तो सब इन्वाइटेड होंगे उस्मान साहब के डिनर पे, लंच पे इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल बारी ये बताएंगे कितने दिन का, मैं ऑब्वियसली मैं तो जाता रहता हूँ और सब भी गए हैं, बहुत सारे लोग इसमें से भी गए होंगे, तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे उस्मान जैसे बता रहे हैं डिनर करें, लंच करें, फिर मैंने देखा वहाँ पे और कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, कुछ
डिनर साइड इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, तो क्या प्लान करना चाहिए ऐसी एग्जीबिशन में सऊदीया में जाते हुए जहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी आ गई, मार्केट की रिसर्च कर ली आपने और आप हर चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो कितने दिन का प्लान करना चाहिए, कितने इवेंट्स होते हैं, साइड इवेंट्स क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी शामिल होती हैं क्या एग्जीबिटर के लिए, कॉन्फ्रेंसेस में भी वो नेटवर्किंग कर सकता है और उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए। अम्मार कह रहे थे, सिद्रा कह रही थी आपको और प्रेजेंट शो करनी है, आपने रुकना भी है, तो आप क्या उसी टाइम पे जाके आप एक्सटेंड करें, इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? अच्छा, इसका सिनेरियो देखिए मैं आपको बताता हूँ। लीप होता है 13 to 16 अप्रैल को, सो इट्स अ 4-day इवेंट। अब 4 दिन तो आपके इवेंट में ही गुजरेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड ये है कि आप लोग एटलीस्ट 1 हफ्ता वहाँ पर रुकें। लीप के दौरान जब आप लोग नेटवर्किंग करेंगे, इट्स ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। आप किसी से कनेक्ट करते हैं, आप उनको अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो शायद आपको उस टाइम पे रीच आउट नहीं करें, जैसे अम्मार को भी उसने काफ़ी टाइम बाद रीच आउट किया। ऐसे ना करें 100%। तो ये होता है कि आपने अपना फॉलो अप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। सो बी देयर फॉर 1 वीक एडिशनल, अपनी चीज़ें उस हिसाब से प्लान करें। जिन लोगों से आपकी बातें हुई हैं वहाँ पर, उनको आप लीव के फ़ौरन बाद ही मैसेज करते हैं कि हाय वी मेट एट लीव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, सो व्हेन कैन वी कनेक्ट। तो 1 हफ्ता आप लोग अप्रॉक्स अपना ज़्यादा रखें कि आप लोग सऊदीया में हों, रियाद में हों, ताकि आप लोगों की मीटिंग वगैरह हो सके। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी करनी है सऊदीया से, वो आपको और इसका एक और सोल्यूशन भी है मेरे पास कि आप जो है अगर हमारे वाली चीज़ नहीं चाहते हो तो आप NFC के जो स्टील कार्ड्स आते हैं विजिटिंग कार्ड वो दें ताकि वो मोड़ ना सके हो। अगर आप जो है इस तरह के कार्ड देंगे तो शायद वो मोड़ दें। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चंस तो सारे हो गए। मैं चाहूँगा जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग सवाल पूछें, और क्योंकि देखिए आप लोगों के इंडस्ट्रीज़ अलग हैं, आप लोग सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखते हैं, पर्पस रखते हैं, और आप लोग कनेक्ट करें और कोशिश करें ब्रीफली सवाल पूछें और अपना नाम बता दें सिर्फ, और ब्रीफली सवाल पूछें और बता भी दें किससे आपका सवाल है, तो ये और आसानी हो जाएगी। We can work things in terms of कि अगर आप एक पवेलियन टाइप सेटअप रखना चाह रहे हैं या आप सिर्फ एक डेलीगेशन लेके आना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो इंशाल्लाह I'll share those details and packages with you, और फिर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लीव पे आ सकते हैं। मुझे बताएं कि जो पार्टनरशिप की आपने बात की है, what is the best partnership revenue model that you think that works there? प्लस ये कि पेमेंट साइकिल्स का क्या हिसाब बता दें, अरब ममालिक के ज़रा हालात बुरे होते हैं उसके अंदर। बहुत अच्छा सवाल। मैं भी फंसा हूँ, मेरी 1-2 महीनों की पेमेंट रुकी है, उसके बाद वो अरबी कॉल बैक ऑन वाली बात हो गई। असल में 2-3 मॉडल्स मैं आपके सामने रखते हैं। प्रैक्टिकल मॉडल जिनके साथ भी हम काम करते हैं, ज़्यादातर कंपनीज के अंदर जो IT हेड वगैरह होते हैं, क्योंकि अरबी डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहा होता, वो इनिशियल कॉल पे आ जाता है, जब पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या बंगाली होगा, तो उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके ही काम कर रहे होते हैं। पेमेंट मॉडल हम 2 तरह से रखते हैं। एक तो पार्टनरशिप मॉडल के अंदर ये होता है कि हम अपनी अमाउंट दे दें और वो उसके ऊपर टॉप अप रख के देते हैं, तो हमें हमारी अमाउंट मिल जाती है। ऐसा भी हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्ट 50,000 रियाल में लॉक किया है, अरबी ने उसको 4 लाख रियाल में आगे बेचा है, वो हमें बाद में पता लग गया, लेकिन हमें हमारी अमाउंट मिल गई क्योंकि वो गलती से उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया, उसके ऊपर लिखी हुई है। ऐसा होता है क्योंकि जब आप टॉप अप करते हैं ना, आप क्या करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उठा के उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें डालते हैं, फिर बेचते हैं। बट क्लाइंट ने जो ट्रांसफर की अमाउंट वो एक अकाउंट में नहीं, वो तो उस अरबी को की ना, मुझे तो मेरी अमाउंट मिल गई, लेकिन मुझे एक्चुअल अमाउंट कैसे पता लगी? बट मेरा इनके साथ ये मेरा भी ये सवाल है कि उसमें तो देर नहीं होती है। नहीं, उसमें पेमेंट साइकिल 30 to 60 डेज होता है। So that's the other question. अभी तो वो मॉडल बता। दूसरा मॉडल ये था जिसके अंदर अरबी के साथ मैंने 1-on-1 मीटिंग की। वो स्मॉल कंपनीज होती हैं, 5 बंदे 10 बंदे, उसमें वो अपना रेवेन्यू बता देता है, एक्सपेंस बता देता है, मैं अपने एक्सपेंसेस बता देता हूँ, जो चीज़ बचती है उसको हम 50-50 कर देते हैं। वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है, या तुम्हारे जो भी ओवरहेड्स आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो हमारे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो करके जो बच जाए उसको हम 50-50 करते हैं। आपके एक्सपेंसेस में आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट हो, हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट है, इवन मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आती है। मैं अगर उसके बिहाफ पे जाके मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाता है। ऐसा भी हुआ है कि मैं बहरीन में था, मीटिंग करने के लिए मैं फ्लाई करके गया, सुबह की फ्लाइट से, शाम की फ्लाइट से दोबारा बहरीन आ गया क्लाइंट के पास, क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग करनी थी, लेकिन वो मीटिंग बहुत ज़रूरी, उसके पैसे अरबी ने फिर उसमें ऐड करके दिए एज ए एक्सपेंस उसके अंदर। अच्छा, इसमें मेरा भी सवाल है कि जो एक्सपेंसेस आप बनाते हैं तो उसमें आर्गूमेंट्स मैंने देखा है कि उसमें ये तो नहीं आते आपने ये क्यों डाल दिया, ज़्यादातर लोग वहाँ पे करते हैं इस तरह की, यार आपने ये एक्सपेंस क्यों डाल दिया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसका तमाम जो दारुमदार है ना, वो आपकी नीयत के ऊपर है। ठीक है, हमारी तो
نہیں میں دونوں کی نیت کی بات بتا رہا ہوں, اور ایسا ہوا ہے لٹرلی, مجھے نہیں پتا کوئی یقین کرتا نہیں کرتا, جیسے ہی آپ کی نیت میں خرابی آنا شروع ہوگی نا, وہ پروجیکٹ یا تو چلا جائے گا یا پروجیکٹ میں کوئی ایسا پرابلم اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا کہ وہ آگے چل ہی نہیں پائے. تو ہم دونوں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کلائنٹ, وہ اپنے ایکسپینسز دکھاتے ہیں, ہم اپنے دکھاتے ہیں, ہم ایک میوچولی لاک کرتے ہیں اس کو, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو میوچولی ایگریمنٹ کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. پروفٹ ماڈل ہے, پروفٹ شیئرنگ ماڈل ہے, جس کے اندر دونوں نے بتا دی, اس میں ون ون سچویشن ہو جاتی ہے, اس کو پتا ہے میرا خرچہ یہ وہ تمہارا کتنا ہے. پیمنٹ سائیکل 30 to 60 days ہوتی ہے. ہاں اچھا, میری دبئی میں ایک کمپنی ہے, میں نے دبئی میں اس لیے بنائی ہوئی کیونکہ دبئی کے جو کلائنٹس ہیں, کیونکہ جیٹ ایکس میرا الگ سے 4 سال سے چل رہا ہے, دبئی کے اندر جو کمپنیز ہیں نا وہ ہمارے ساتھ باؤنڈ کرتی ہیں یا ایگریمنٹ پروجیکٹ دیتی ہیں اگر میں دبئی میں ایکسسٹ کرتا ہوں تو, ٹھیک ہے نا. تو ہم سعودی مارکیٹ کی چیزوں کو دبئی لے کے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے سعودی لوگ ہمارے پاس ڈائریکٹ پر اپلائی نہیں ہوتے. سوال اسی کنٹینیوشن میں ہے, وہ یہ کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ آپ پراپر کوئی پارٹنرشپ ایگریمنٹ نہیں کر رہے لیگل, اٹس کائنڈ آف این انفارمل ارینجمنٹ, از دس کریکٹ؟ یا پھر دوسرا یہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ پارٹنرشپ کا آپ نے ورڈ یوز کیا اور سدرا کہہ رہی تھی کہ ہم وہاں کمپنی بنا رہے ہیں, تو آئی تھنک what I have heard کہ وہاں پر ایفیلیٹ ٹائپ کے بھی ارینجمنٹ ہوتے ہیں جہاں پر آپ پراپر لیگل ایگریمنٹ نہیں کر رہے, پارٹنرشپ یعنی کہ ان دا سینس کہ آپ شیئر ہولڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لے کے چل رہے, لیکن یو ہیو این ارینجمنٹ کہ بھائی اتنا % میں لے لوں گا یا اتنے % آپ کو مل جائے گا. کانٹریکٹ ہے میرے پاس تھا, ان کا ڈومین الگ ہے, یہ پروڈکٹ بیس ہے, ان کو فنڈنگ چاہیے, میں سروس انڈسٹری میں مجھے فنڈنگ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن میں اسٹارٹ اپ ایریا میں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ اسٹارٹ اپ پہ میرا جو ایکسپیرینس ہے لوگ زیادہ آتے ہیں. بڑی کمپنیز کے پاس دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ آپ آنا چاہتے ہیں, آپ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ بڑا بوتھ ہے, بڑے آپ کہیں گے یار وہ تو چھوٹتے مجھے ₹1,00,000 کی انوائس کر دے گا. میں الگ کھڑا ہوں, 2 بندے لے کے کھڑا ہوں, میرے پاس آتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. یہ وجہ ہوتی ہے اسٹارٹ اپ میں, میں اسٹارٹ اپ میں فنڈنگ کے لیے ہوتا ہوں. آئی تھنک شاید یہ بھی سروس بیس پہ, سروسز کو فنڈنگ نہیں ملتی, پروڈکٹ کو فنڈنگ ملتی. دوسری بات جو آپ نے ماڈل بتائی تو شمیم نے پوچھا, ان کو میں نے بتایا ہمارے پاس 5-6 قسم کے ماڈلس ہیں. میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ میری ایک عادت ہے, میں فلیکسیبل رہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تم جیسا کرنا چاہو کرو, بزنس لے کر آ جاؤ, چاہے لکھوا لیں, NDA کروا لو, ایسی چیز نہ ہو جو مجھے روکے یا آپ کو روکے. تو ایک تو MOU سائن ہو جاتا ہمارا, ایک NDA سائن ہو جاتا, وہ ہو گیا سائن. اب ہم فلیکسیبل رہتے ہیں, ہم جب آتے ہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی آپ ٹاپ اپ ماڈل پہ جانا چاہو گے یا پارٹنرشپ ماڈل پہ جانا چاہو گے. میجورٹی عربی ٹاپ اپ ماڈل پہ جاتا ہوں, کہتے ہیں تم اپنے پرائز بتا دو بلکہ میرا کام ہو جائے. میرے پاس ایسے عربی بھی کام کر رہے ہیں جن کو آگے کلائنٹ نے پیمنٹ نہیں کی, اس نے میری پیمنٹ ریلیز کر دی, ٹھیک ہے نا. تو اتنا اچھا ریلیشن شپ ہمارا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات وہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کو گاڑی سے وہ ملا تھا کس طرح سے کنیکٹ کرے, تو اس میں چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں تو ہم نے واٹس ایپ گروپ کی کمیونٹی بنائی, اس میں 22 ممالک سے میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں کیونکہ میری ٹریننگ انڈسٹری بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر ہم نے ایک سعودی چیپٹر الگ بنایا ہوا واٹس ایپ گروپ کے اوپر, اس میں میں عربیوں کو بھی شامل کر دیتا ہوں. تو جو بھی جابس آ رہی ہوتی ہیں, پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ پروجیکٹ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈلیور کروا دیتا ہوں. تو ہمیں تو ریونیو ماڈل جنریٹ کرنا ہے, میں خود کروں یا کسی اور سے کروا دوں. تو میرے تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹ سعودیہ میں ہیں جو IT ہیڈ لیول کے موجود ہیں وہاں. جب میں ان کو بلاتا ہوں کھانے پہ چیزوں پہ تو ان عربیوں کے ساتھ بھی بلواتا ہوں, کیا تم ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہو کر لو, میرے ساتھ کرنا چاہو میرے ساتھ کر لو. تو میں ان کے لیے بھی راستہ بنا رہا ہوں اور اپنے لیے بھی راستہ بنا رہا ہوں. یہ چیزیں سے I had 2 questions. My first question is that I'm also starting my own startup that is currently incubated in NIC Hyderabad. My first question is that کہ پاکستان سے بیٹھ کے آپ وہاں سعودیہ کی مارکیٹ کی پرابلمس تو نکال سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس پر اپنا کوئی سلوشن بھی بنا سکتے ہیں اسٹارٹ اپ آئیڈیا کی بیس پہ. لیکن پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کی جو بات کی تھی وہ پاکستان سے رہتے ہوئے ہم کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کس طرح کا ہمارا ہے یا نہیں ہوتا. ہم سعودیہ کے پرابلمس نہیں جج کر سکتے, یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہاں پہ ہم ہیں, یہاں پہ ہم صرف یہاں کا پروڈکٹ مارکیٹ فٹ دیکھ سکتے ہیں, یہاں کی پرابلمس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم کسی بھی باہر ملک کا نہیں کر سکتے جب تک ہم وہاں پہ پریزنٹ نہ ہوں. تو وہیں پر ہی بات اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو سعودیہ مارکیٹ کے لیے کچھ بنانا ہے یا وہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہمارے اس میں یہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں پہلے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کیا, کیونکہ بیسک چیز تو وہی رہے گی نا, ریئل اسٹیٹ کی. ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا ڈومین ہے بیس لیئر تو وہی رہے گی. لیکن جب آپ کسی اور ملک میں جاتے ہو تو وہاں پہ گورنمنٹ کے کمپلائنسز وہ ساری چیزوں کا فرق آ جاتا ہے. جب آپ نے یہاں پہ کر لیا, آپ نے بیس پروڈکٹ بنا لی, MVP ڈیولپ ہو گیا, میچور ہو گیا, پیئنگ کسٹمرز آ گئے, اس کے بعد آپ باہر جانے کا سوچیں کہ وہاں کی کمپلائنس کے حساب سے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ اچیو ہے. پاکستان کی جو کچھ پرابلمز اس وقت ہیں اس میں کلائمیٹ چینج ہے, واٹر ہے, اریگیشن ہے, ایگریکلچر ہے, فن ٹیک ہے, AI ہے, وومن امپاورمنٹ ہے, یہ کچھ پرابلمز ہیں جن پاکستان میں بھی کام اور اسٹارٹ اپس بھی اسی کے اوپر آ رہے ہیں.
तो इस तरह सऊदीया में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी. So what if we choose our startup addressing to one of those problems, one of those focuses currently that the Saudi government and economy is on? वहाँ पे एक्चुअल में सेल करना है तो आपको सऊदीया में जाके दोबारा से चीज़ें आगे पीछे करनी होंगी. जैसे पाकिस्तान में रियल एस्टेट जैसे जो हाल हमें पता है, सऊदीया में भी यही हाल है. बट वहाँ पे और भी लेयर्स है. वहाँ पे आपकी ज़ैट का इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आपकी HR से इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आपका जो है ज़कात में भी कुछ प्रोसेसेस हैं वहाँ पे. तो जब तक आप वहाँ होंगे नहीं तो फिर आप ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे. आप नहीं कर सकेंगे तो सेल नहीं होगा. Right, thank you. तो currently आप किसी incubator या accelerator के पास वहाँ पर हैं? अभी हिमाचल रेफरेंस. Next question is from Amar. Amar, मैं एक big software engineer हूँ, Flutter developer नहीं हूँ, fast graduate हूँ. So how is the tech adoption and मतलब ऐप एडॉप्शन या टेक्निकल सिस्टम्स के एडॉप्शन वहाँ के लोकल बिजनेसेस में कैसी है? क्योंकि पाकिस्तान में आप देखते हैं तो क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो करंटली पाकिस्तान में है, इवन गवर्नमेंट, तो उनमें थोड़ा सा चेंज रिलेक्टेंस पाई जाती है. लोग काम कर रहे हैं सीनियर पोजीशंस पे, वो एक मैनुअल तरीके से या एक तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हिंडर करती है. जो दोनों जेनजीज आ रहे हैं आगे, नई जनरेशन इनमें एडॉप्शन है, लेकिन करंटली जो स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं उनमें थोड़ी सी चीज़ यहाँ नज़र आती है. वहाँ इसको वहाँ भी ये चीज़ है. अच्छा, वहाँ पर आपको रिलेक्टेंस नहीं दिखेगी. उसकी मेजर वजह आपको ये है कि वहाँ गवर्नमेंट का कुछ बहुत है. लेकिन इन्होंने नाम लिया ज़ैटका का, तो वो क्या है, उनका टैक्स का बेसिकली पूरा सिस्टम आ गया. इट हैज़ टू बी डिजिटल. कोई ऑप्शन नहीं. एक छोटा सा मतलब हमारा क्लाइंट था, छोटा सा ई-कॉमर्स स्टोर था, उनको हमसे कस्टम काम करवाना पड़ा बिकॉज उनकी गवर्नमेंट ने उनको 25,000 रियाल का फाइन कर रही थी जस्ट बिकॉज उनकी जो इनवॉइसेस थी उस पर ज़ैटका का वो नहीं था. एंड चाहे वो मैनुअली टैक्स क्यों लगा दें, कुछ भी क्यों ना कर दें, जो शॉपिफाई, वूकॉमर्स इन सब के या फ्लटर आप यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लगे जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं था. उन्होंने अपना तो जैसे उन्होंने बात की, बिल्कुल ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट के अपने बहुत सिस्टम्स आ गए. तो गवर्नमेंट का डिजिटल पुश इतना है, हर कोई मजबूर हो गया. ज़कात 2.5% जो है इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू फाइल इट डिजिटली. कोई मैनुअल सिस्टम नहीं जो पाकिस्तान में होता है. जैसे उन्होंने मेंशन किया कि 15% वैट पर उन्होंने मेंशन किया, दिस इज रिक्वायर्ड and this is required through their systems. गवर्नमेंट ने अपनी APIs बनाती है, गवर्नमेंट ने सिस्टम लॉन्च कर दिए एंड वहाँ पे गवर्नमेंट बस डेडलाइन दे देती है कि 30 तारीख से पहले आपका हर सिस्टम इसमें होना चाहिए, नहीं तो देयर आर हेफ्टी फाइन्स. तो आपको हिंड्रेंस इसलिए नहीं मिलेगी कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है. अब तो इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत है. किसी बिजनेस के पास जाए अगर वो बेसिक है, इस रिक्वायरमेंट है, उनकी चाहत नहीं है, रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू डू इट. मैंने पार्टिसिपेट फ्रैंकली इसलिए नहीं किया कि उसके फ़ौरन बाद रमज़ान, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका ROI कैसे कैलकुलेट करूँ इन इवेंट्स का. अब आई होप कि रमज़ान के बाद हो रहे हैं कुछ बेहतर है, लेकिन रमज़ान के बाद भी यहाँ पे गर्मियों का सीज़न है और मेरा ख्याल है जो लोग वहाँ पे जानते हैं, रहते हैं, मैं 18 साल से वहाँ पे ऑफ एंड ऑन काम कर रहा हूँ एज कंसल्टेंट. मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब हम मई जून जुलाई की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन मेकर्स नहीं होते और जो हालात होते हैं 50s में, मैंने खुद 57 डिग्री सेल्सियस देखा है. तो वो जब 50s में टेम्परेचर चलता है तो कोई आपसे मीनिंगफुल गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होता. तो अब मैं अगर इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो इसका ROI कैसे हम इसको कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके 15-20 दिन के बाद तो डेड जोन शुरू हो जाएगा. आगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही होगा, रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान हर साल 10 दिन पीछे होता जा रहा है. तो ROI का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ROI आपको जो है ना वो कस्टमर्स के पास जाके उनसे बात करके लगाना पड़ेगा और ROI आपको 3-4 साल में मिलेगा, क्योंकि वहाँ कस्टमर मार्केट स्लो है. उनके साथ कोई डील साइन करना जो है ना वो टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सेकेंडली, अगर आप पार्टनर्स बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है, उसके आगे 15 कस्टमर है, आपने एक पार्टनरशिप बनाई ना, 15 कस्टमर आपकी जेब में आ गए, क्योंकि उसका सारा काम आपने करना है. उसमें फिर आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा. तो आप दोनों मॉडल कर सकते हैं. आप डायरेक्ट भी कस्टमर से कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप के लिए कोई लोकल कोई प्रॉपर कोई वो नहीं है, आप MOU करके भी कर सकते हैं और उसके थ्रू भी ROI आप नहीं. आई अंडरस्टैंड ओवरऑल मॉडल. मैं डेड जोन की बात कर रहा था कि जब हम डेड जोन में जाते हैं ना तो फिर वहाँ पे कोई ना पार्टनर के लिए मिलता है, कोई नहीं. अच्छा, ऑनेस्टली मैंने जून जुलाई के अंदर भी अच्छा खासा वहाँ काम किया है. मैंने डेड जोन नहीं दिया, क्योंकि हम तो AC में ही बैठे होते हैं और बाहर निकलना तो क्या 50, क्या 70, क्या 100, वो उनके लिए तो वही है. तो जब काम आ रहा होता है ना तो वो करते हैं उसके अंदर, वो मतलब रुकते नहीं है. तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डेड जोन कभी मिला नहीं वहाँ पे. मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिंक होता है. वो मुझे मोराको में मिला था, अरबी मराकेश में कासाब्लांका गया हुआ था, वहाँ पे हमारा इवेंट था जेटेक्स का, वहाँ मिला था. उसने आके अपना कार्ड IT हेड को दिया था, वो IT हेड मुझसे अगले साल लीव में मिलने आया था.
तो अरबी आपको कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं वहाँ पे। आप एक साल भी गायब हो गए ना, मार्केट से आप गायब हो गए। Experience is related to ERP implementations and internal controls in audit. So my question is with Abdul Bari that what is for me in this event? Fortify भी कर रहा है अभी, these guys have been regular as well. So what is in it for you? In the startup area, obviously शायद आप लोगों को वो scope ना मिले तो आप expect करना चाह रहे हैं, क्योंकि ERP में there has to be some sort of innovation or else you won't be selected, ठीक है? मेन स्पेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो पाकिस्तान पवेलियन का बैनर बनता है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज वहाँ पे आती हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ पार्टनरशिप्स करना चाह रहे हैं. सो द हॉल इज बेसिकली द एंटायर वेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिकली मेजर फील्ड्स. एक स्टार्टअप एरिया है और एक मेन स्पेस है. आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी कहाँ मतलब हम लोग फिट कर रहे हैं, तो वो आपका हॉल है जहाँ पे टेक टाइप हो गया. सो व्हाट्स इन इट फॉर यू? आपके लिए स्ट्रेट अप एक नेटवर्किंग इवेंट ही है जहाँ पे आप लोग मल्टीपल जितने भी पोटेंशियल पार्टनर्स हैं वो आपसे बात करेंगे, ठीक है? एंड देन देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्लोज. सो दिस इज स्पेसिफिकली ओनली अ नेटवर्किंग इवेंट फॉर यू. तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं. सो HRM सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आर इन नीड, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है. लेकिन अब उसमें इतनी ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी आ गई हैं, तो वो वंस अगेन क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, वो इतना स्टार्टअप एरिया में रेलेवेंट नहीं होगा. हाँ, जो मेन स्पेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी HR सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बेसिकली प्रपोज कर सकते हैं तो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं. अच्छा, इसमें देखेंगे दिस इज अ कम्प्लीटली IT बेस्ड इवेंट, ठीक है? तो HR सॉफ्टवेयर हो या कोई सा भी लेट्स सपोज किसी भी सेक्टर का हो, once again it's up to you to decide whether if you want to participate as a startup over there or in the main space, ठीक है? Potential opportunity दोनों के लिए ही है, so it's open for all. The opportunity is for all. Financial assistance, so what Leap offer them? Like, are there any waiver, subsidy or facilitation program for them? Quoted an amount earlier कि वो है 2,703 का. However, from today जितने भी हमारे participants हैं इधर आज, I can offer innovative startups, selective of them, a 50% waiver on the original cost. So it would cost you around $1,150 on it. So Shahid, to answer your question, yes, there is an opportunity to avail a waiver. However, it's going to be basically selective. It will come directly from the team in Riyadh, and then we'll be able to give it to the startups. How do you apply for that? My team would be sending out the startup application. I hope you had filled out the form. My team will send you the startup application form. Please fill it out, put your company details over there and as much information as possible. Once you guys are selected, well, then I would be only able to onboard you guys. Sidra, I have a question for you. So you mentioned about registering your business there, and there was some talk around 65,000 riyal minimum chahiye hota hai. So is that the only route या फिर कुछ और भी process है? Thank you. हमने जब जो स्टार्ट किया था पूरा प्रोसेस, हमने ट्रेडिशनल JV मेथड से ही स्टार्ट किया था. तो उससे हुआ ये कि वीज़े की जहाँ तक बात है, हम हमेशा उम्र वीज़ा भी रहे और ये बिजनेस वीज़ा लगता नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग होता है. तो अब ये इस दफ़ा ये हुआ, जैन जो मेरे को फाउंडर हैं अभी वहाँ रियाद में मौजूद है, तो उनका भी हुआ है कि वर्क वीज़ा लगाया हमारे JV पार्टनरशिप वाली कंपनी है जिसका नाम दुरू वफात वीज़ा है. और उन्होंने जैन का वर्क वीज़ा लगाया तो जैन वहाँ पे एंड फिर उन्होंने जैन का काम ही लगा दिया. तो हमारे लिए थोड़ा सा सर्वाइवल पॉइंट ये है कि बैकअप में हमारे पास JV वाला ऑप्शन है जो हमारे लिए वो चीज़ें कर देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल कोई सोल्यूशन नहीं है. मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपको देखना पड़ता है कि ये नहीं हो रहा चलो ये कर लो, ये नहीं हो रहा ये कर लो, इस तरह से कर लो. तो ये वाली चीज़ आता है. वहाँ स्पेशल ऑफर्स एंड पैकेजेस हैं NIC कराची के स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली. एंड अब्दुल बारी को बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो अब्दुल बारी के मुझे से elaborate होंगे. Yes, so sure. Once I mentioned a bit earlier, किसी ने अभी कॉस्टिंग के हवाले से पूछा था. So for all the NIC startups और जितने भी हमारे attendees हैं, fill out the application form और जो मैंने 50% waiver की बात की है, जिसमें आपका total cost $1,150 हो जाएगा from 2,703. So that's what we are offering to our audience today here at NIC startup.